Hello students, consider this example. F1 vector plus F2 vector is equals to F3 vector. One more example. S1 vector plus S2 vector is equals to S3 vector. हम फोर्स को फोर्स के साथ ही ऐड कर सकते हैं एंड हमें जो रिजल्टेंट वेक्टर मिलेगा वो भी फोर्स ही होगा. हम डिस्प्लेसमेंट को डिस्प्लेसमेंट के साथ ही ऐड कर सकते हैं एंड हमें जो रिजल्टेंट वेक्टर मिलेगा वो डिस्प्लेसमेंट ही होगा. स्टूडेंट्स, मैंने आपको ये एडिशन का एग्जांपल दिया हुआ है, आप सब्ट्रैक्शन के लिए भी ये वैलिड समझ सकते हैं. दैट मीन्स हम वेक्टर्स ऑफ सेम टाइप को ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं एंड हमें जो रिजल्टेंट वेक्टर मिलेगा वो भी सेम टाइप का होगा. मीन्स फोर्स प्लस फोर्स विल नेवर गिव यू डिस्प्लेसमेंट, राइट? Displacement plus displacement will never give you force, it will always give you displacement. So force plus force has to give you force, displacement plus displacement has to give you displacement. ये हो गई वेक्टर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन की बात. Now what about multiplication? Consider this example, students. If V I am using as a denotion of speed into time, T for time, right? So speed into time will give me distance. I am denoting that by S. You can think about one more example. F vector can be found by using the formula mass into acceleration vector. Observe it carefully, students. Speed is a scalar quantity. Time is also a scalar quantity. So scalar quantity multiplied by a scalar quantity will always give you a scalar quantity. Speed into time will give you distance. Scalar, scalar. So resultant जो हमें मिलता है वो भी एक स्केलर ही होगा. So आप इसे एक रूल कंसिडर कर सकते हैं स्टूडेंट्स. स्केलर क्वांटिटी multiplied by a scalar quantity will always give you a scalar quantity only. It will never give you a vector quantity, right? Scalar quantity multiplied by another scalar quantity will give you a scalar quantity itself. It will never give you a vector quantity. Consider this example. Force vector is equals to mass into acceleration vector. Now over here, mass is a scalar quantity. Acceleration vector is a vector quantity and force vector is also a vector quantity. So I can conclude it like this. Scalar multiplied by vector will give me a vector as my output. Scalar multiplied by vector will give you a vector quantity. Scalar multiplied by scalar will give you scalar. And scalar multiplied by vector will always give you vector. Now what about multiplication of two vectors? हम दोनों क्वांटिटी को जिसे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो दोनों अगर वेक्टर है तो आंसर स्केलर मिलेगा या फिर आंसर वेक्टर मिलेगा. दैट डिपेंड्स कि हम किस तरीके से मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं. सर आपने यहाँ पे ठीक तरीके से रूल हमें बता दिया. स्केलर इनटू स्केलर विल गिव यू स्केलर, स्केलर इनटू वेक्टर विल गिव यू वेक्टर. बट आप दो वेक्टर के मल्टीप्लीकेशन में ऐसा कुछ स्टैंडर्ड आंसर क्यों नहीं दे रहे? द रीजन इज स्टूडेंट्स कि जो वेक्टर मल्टीप्लीकेशन होते हैं उससे दोनों आउटपुट पॉसिबल है. इट कैन हैपन दैट आपने दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई किया एंड आपको वेक्टर मिला. दिस कैन ऑल्सो हैपन दैट आपने दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई किया लेकिन आपको जो आंसर मिला वो स्केलर. सो हम जब दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं आंसर वेक्टर भी हो सकता है, स्केलर भी हो सकता है. इट डिपेंड्स स्टूडेंट्स कि हम लोग कौन सा मल्टीप्लीकेशन फॉलो कर रहे हैं. सो लेट मी पुट दैट हेडिंग स्टूडेंट्स. मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर्स. Multiplication of vectors
can be taken as of two different types. First is scalar product, which is also called as dot product, while second is vector product, which is also called as cross product. Vector multiplication is of two types. First is scalar product, also called as dot product. Second is vector product, which is also called as cross product. ये समझने के लिए let me give you certain examples. एक बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल मैं देने जा रहा हूं. स्टूडेंट्स अक्सर मुझसे ये पूछते हैं that sir, force is a vector quantity. Okay. Displacement is also a vector quantity. So force into displacement जो होता है, जिसे हम वर्क कहते हैं, वो क्यों स्केलर क्वांटिटी है? स्टूडेंट्स लेट मी टेल यू, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ये दोनों वेक्टर है, लेकिन आप जो मल्टीप्लीकेशन कर रहे हो वो स्केलर प्रोडक्ट है, वो डॉट प्रोडक्ट है. इसीलिए आपको जो आउटपुट में वर्क मिल रहा है वो एक स्केलर क्वांटिटी है. सो वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. हम 1000 बार ये फॉर्मूला बोलते हैं, बट लेट मी क्लैरिफाई द स्टूडेंट्स, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का हमने डॉट प्रोडक्ट किया, क्रॉस प्रोडक्ट नहीं, डॉट प्रोडक्ट किया. इसीलिए हमें जो आउटपुट मिल रहा है वर्क, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी. वर्क इज इक्वल टू फोर्स वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विद एस वेक्टर. मतलब फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट करना है, लेकिन डॉट प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, तब हमें वर्क मिलेगा, which is obviously a scalar quantity. Let me share some more examples with you. Par P is equals to F vector dot V vector. Force multiplied by velocity will give you par, right? But let me tell you, it is dot product. So the dot product of force and velocity will give you par, and par is definitely a scalar quantity. Magnetic flux phi can be taken as magnetic induction B vector dot product with area vector. So magnetic induction dot product with area vector will give you magnetic flux, which is a scalar quantity. Now let me give you certain examples for vector product, यानी cross product. L vector is equals to R vector cross P vector. क्रॉस का मतलब हुआ क्रॉस प्रोडक्ट स्टूडेंट्स. R vector क्रॉस P vector will give you L vector. P vector को स्टूडेंट्स हम लीनियर मोमेंटम कहते हैं, and L vector is angular momentum. So L vector is equals to R vector cross P vector. टॉर्क का एक एग्जांपल लिया जा सकता है स्टूडेंट्स. टॉर्क टाउ वेक्टर इज इक्वल्स टू आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर. फोर्स आर वेक्टर, टाउ यानी टॉर्क वेक्टर स्टूडेंट्स, राइट? सो आर वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट विथ फोर्स वेक्टर विल गिव यू टाउ, दैट इज टाउ वेक्टर यानी टॉर्क, विच इज डेफिनेटली अ वेक्टर क्वांटिटी. ध्यान से ऑब्जर्व करिए स्टूडेंट्स, वेक्टर cross product with vector will give you a vector quantity. Vector quantity cross product with vector quantity will give you a vector quantity. Let me give you one more example for this. V vector is equals to omega vector cross R vector. Omega vector is angular velocity, R वेक्टर इज रेडियस वेक्टर. दोनों के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट ढूंढना तो आंसर तो वेक्टर ही होगा, यानी लीनियर वेलोसिटी V वेक्टर. लीनियर वेलोसिटी इज इक्वल्स टू एंगुलर वेलोसिटी क्रॉस प्रोडक्ट विद R वेक्टर, दैट इज रेडियस वेक्टर. सो स्टूडेंट्स, हमने ये क्लियरली समझा दैट जब हम दो वेक्टर्स के बीच डॉट प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे तो जो रिजल्टेंट मिलेगा वो एक स्केलर क्वांटिटी होगा, एंड जब हम दो वेक्टर्स के बीच क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे तो जो रिजल्टेंट हमें मिलेगा दैट विल बी अ वेक्टर क्वांटिटी. अभी स्टूडेंट्स हमें दोनों को एक एक करके डिटेल में समझना है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डू स्केलर प्रोडक्ट.
और फिर उसके बाद टर्म आएगा वेक्टर प्रोडक्ट का। अभी हम स्केलर प्रोडक्ट पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे कुछ समय के लिए। Concentrating only on scalar product, which is also called as dot product. The scalar product or dot product of two non-zero vectors, let's say p vector and q vector. Scalar product यानी dot product. Okay students? So p vector dot q vector क्या होता है? मतलब what is the definition of स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो वेक्टर्स? सो आप इस तरीके से कह सकते हैं द स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो वेक्टर्स, लेट्स से p वेक्टर एंड q वेक्टर, इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ द टू वेक्टर्स एंड cosine of the angle between the two vectors. Let's say that angle between p vector and q vector is theta. So मैं कह सकता हूं p vector dot q vector is equals to magnitude of p vector into magnitude of q vector into cosine of angle between the two vectors, that is cos theta. बहुत बार ट्यूटर्स इसे ऐसे भी लिखते हैं, p वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज सिंपली p, q वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज सिंपली q into cos theta. Okay students? So आप कह सकते हो p vector dot q vector is equals to p q cos theta, which is actually definition of scalar product, which is also called as dot product. अब मुझे बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स आपको समझाने हैं about scalar product. I will start with the first one students. इसके लिए we can consider p vector. Okay, this is q vector, and इन दोनों के बीच जो एंगल है स्टूडेंट्स वो होना चाहिए थीटा. p वेक्टर q वेक्टर दोनों वेक्टर्स के बीच जो एंगल है दैट एंगल इज थीटा. अभी मैं क्या करने वाला हूं, मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करने वाला हूं स्टूडेंट्स. तो स्केल ले लेते हैं यहां से. लेट मी ड्रॉप परपेंडिकुलर, बट स्टार्ट कहां से करना है? q वेक्टर के हेड से. सो q वेक्टर के हेड से आई विल ड्रॉप अ परपेंडिकुलर ऑन p वेक्टर. ओके, सो इतना जो मुझे मैग्नीट्यूड मिला वो मुझे फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स. ये देखिए जो टोटल मैग्नीट्यूड है वो तो p है टोटल, एंड हाउ मच इज दैट वो हमें फाइंड आउट करना है. नेक्स्ट स्टेप, p वेक्टर का जो हेड है वहां से हम q वेक्टर के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे. ये लीजिए हमने कर लिया. सो एडवांटेज ये होगा स्टूडेंट्स, हमें ये दोनों एंगल 90 मिल गए. फर्स्ट ये वाला एंड सेकेंड ये एंगल मिल गया हमें 90 डिग्री. जैसे हम इतना मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करेंगे स्टूडेंट्स, यहां से यहां, दिस मच मैग्नीट्यूड राइट, इन दैट राइट एंगल ट्राइंगल मुझे यहां से लेके, लेट मी ड्रॉ इट फॉर यू, हमें स्टूडेंट्स यहां से लेके यहां तक का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना रहेगा. सिंपल सा कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट्स. कॉस थीटा होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, जिसे हम सिंपली कहते हैं जिस साइड के पास थीटा होगा वो हमेशा कॉस थीटा के फॉर्म में आएगा. जिसके पास थीटा उसके पास कॉस थीटा, जिसके पास थीटा उसके पास कॉस थीटा. सो वी लुक फॉर दिस राइट एंगल ट्राइंगल स्टूडेंट्स. पॉइंट्स को देखिएगा 1 2 3. इन दिस राइट एंगल ट्राइंगल हाइपोटेन्यूस का जो मैग्नीट्यूड है वो है q, राइट, एंड ये जो थीटा है उसका एडजेसेंट साइड यहां पे है. जिसके पास थीटा उसके पास cos थीटा. सो स्टूडेंट्स दिस मच मैग्नीट्यूड विल बी इक्वल्स टू q टाइम्स ऑफ cos थीटा. ओके, एंड वी कैन लुक फॉर अनदर राइट एंगल ट्राइंगल स्टूडेंट्स. पॉइंट्स को देखिएगा 1 2 3. आउट ऑफ दीज 3 पॉइंट्स यहां पे एंगल 90 फॉर्मेशन हो रहा है. सो p वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है, जो p है, वो इस वाले राइट एंगल ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूस है. सो हाउ मच विल बी दिस मच मैग्नीट्यूड स्टूडेंट्स? जिसके पास थीटा उसके पास cos थीटा. सो दिस मच मैग्नीट्यूड विल बी p cos थीटा. ओके,
How much is that, students? It is Q cos theta. How much is that? P cos theta. अभी स्टूडेंट्स हमने सीखा that P वेक्टर डॉट Q वेक्टर को हम लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ P इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ Q इंटू कॉस ऑफ थीटा. ओके, इसको मैं सेकेंड टर्म समझ लेता हूं स्टूडेंट्स. सो हम लिख सकते हैं P वेक्टर डॉट Q वेक्टर इज इक्वल्स टू P एज इट इज रखिए multiplied by Q cos theta. And what is Q cos theta? Q cos theta is actually component of which vector? Q vector in the direction. ये किसके डायरेक्शन में है स्टूडेंट्स? P वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ P वेक्टर. ये आपको समझना है स्टूडेंट्स. सो P वेक्टर डॉट Q वेक्टर विच इज डेफिनेटली PQ cos थीटा को हम लिख सकते हैं P मल्टीप्लाइड बाय कॉम्पोनेंट ऑफ Q वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ P वेक्टर. आप दूसरे तरीके से भी इसे सॉल्व कर सकते थे स्टूडेंट्स. इंस्टेड ऑफ पहले P फिर Q आप ऐसे लिख सकते थे P वेक्टर डॉट Q वेक्टर, लेफ्ट हैंड साइड तो सेम रहेगा स्टूडेंट्स, इज इक्वल्स टू इंस्टेड ऑफ P इंटू Q मैं लिख रहा हूं स्टूडेंट्स Q इंटू P लिख सकते हैं ऐसा, इंटू कॉस ऑफ थीटा एज इट इज. सो आई गॉट P वेक्टर डॉट Q वेक्टर इज इक्वल्स टू Q multiplied by P into cos theta. So that has to be students Q multiplied by P cos theta. And what is P cos theta students? P cos theta is component of which vector? P vector obviously, right? It is component of P vector in the direction. किसके direction में students वो? Q vector. So it is component of P vector in the direction of Q vector. So this is characteristic number 1 of our scalar product. Characteristic number 2 students. Scalar product obeys commutative law. Characteristic number 2. Scalar product obeys commutative law. It is very easy to prove it. P vector dot Q vector को हम लिख सकते हैं स्टूडेंट्स P Q cos थीटा. इसे हम लिख सकते हैं Q इंटू P इंटू cos थीटा. इसे हम लिख सकते हैं Q वेक्टर डॉट P वेक्टर. ओके, सो इफ यू ऑब्जर्व केयरफुली, लेफ्ट हैंड साइड इज P वेक्टर डॉट Q वेक्टर while right hand side is Q vector dot P vector. So P vector dot Q vector is equals to Q vector dot P vector. That means scalar product obeys commutative law. Third characteristic students, scalar product obeys distributive law. Scalar product obeys distributive law. Have you observed this? P vector dot product with Q vector plus R vector
can be taken as P vector dot product with Q vector plus as it is डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए P वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विद R वेक्टर. सो स्केलर प्रोडक्ट जो है वो कम्यूटेटिव के साथ साथ डिस्ट्रीब्यूटिव भी होता है. Now we look for special cases. Special cases. We know general formula, students, that P vector dot Q vector is equals to P Q cos theta. I take a better one. Okay. Students, we know this, right? P vector dot Q vector is equals to P Q cos theta. ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला हम जानते हैं. अब इसमें हम लोग स्पेशल एंगल्स कंसिडर करके देखेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, आई विल टेक थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री. ओके. देन आई टेक थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री. थर्ड होगा स्टूडेंट्स थीटा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. ओके. स्पेशल केसेस, थीटा 0 लेंगे, 90 लेंगे, 180 लेंगे, चेक करेंगे भाई क्या हो रहा है यहाँ पे. सो स्टूडेंट्स, इन दैट केस P वेक्टर डॉट Q वेक्टर कैन बी टेकन एज P इंटू Q. दैट्स इट. बिकॉज थीटा जो है वो 0 है एंड cos ऑफ 0 डिग्री इज 1. So we get P vector dot Q vector is equals to PQ. Now this is valid for parallel vector students. For parallel vectors जिनके बीच एंगल 0 डिग्री है, P vector dot Q vector को हम PQ लिख सकते हैं सिंपली. थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री. P vector dot Q vector will be equals to 0. This is important for solving MCQ, students. For perpendicular vectors, right? For perpendicular vectors, जिनके बीच एंगल 90 होगा, dot product is 0. For perpendicular vectors, dot product is 0. So P vector dot Q vector will be 0 if the two vectors are perpendicular to each other. Third special case, theta is 180 degree. We get P vector dot Q vector is equals to P into Q. Cos of 180 degree will give you -1, so you get minus PQ. So P vector dot Q vector is equals to minus of PQ. This is valid for anti-parallel vectors. Theta जो है वो 180 degree है students. So the two vectors are anti-parallel vectors. Okay. एक बात और हम यहाँ पे समझ सकते हैं स्टूडेंट्स, पॉइंट नंबर 4 के साथ हम पॉइंट नंबर 5 भी लिंक कर सकते हैं. वी कैन थिंक अबाउट यूनिट वेक्टर्स जिनका खुद का मैग्नीट्यूड 1 होता है. थिंक अबाउट दिस स्टूडेंट्स, आई कैप डॉट प्रोडक्ट विद आई कैप. कैसे ढूंढते हैं स्टूडेंट्स हम लोग डॉट प्रोडक्ट? फर्स्ट का मैग्नीट्यूड, आई कैप का मैग्नीट्यूड इज 1. सेकेंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगेन आई कैप, सो मैग्नीट्यूड इज 1 इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन द टू. या फिर सिंपली आप शॉर्टकट यूज कर लो ना बेटा, डॉट प्रोडक्ट है आई कैप डेफिनेटली पैरेलल कैटेगरी में आएगा. सो आप P वेक्टर डॉट Q वेक्टर को क्या लिखोगे? PQ. सो सिंपली दोनों के मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लीकेशन 1 इंटू 1, दैट्स इट. सो स्टूडेंट्स आपको मिलने वाला है 1 इंटू 1, दैट इज 1. So by using the same concept students, हम कह सकते हैं that J cap dot product with J cap, this will also be equals to 1, and we can think about K cap dot product with K cap, we get 1. I cap dot product 1.
j cap dot product 1, k cap dot product 1. And what about perpendicular vectors? For perpendicular vectors, dot product is 0. For perpendicular vectors, dot product is 0. So students, हम कह सकते हैं that I cap is a unit vector along x-axis, right? J cap is a unit vector along y-axis, and k cap is a unit vector along z-axis. So definitely I cap, j cap and k cap are orthogonal vectors. या फिर आप simply कह सकते हैं these three are mutually perpendicular. That means angle between I cap and j cap 90 degree, angle between j cap k cap 90 degree, angle between I cap and k cap is also 90 degree. That means dot product of any two out of these three will give you 0. समझेगा ये? तो आप इसको एक टेबुलर फॉर्मेट में लिख सकते हो स्टूडेंट्स, somewhat like this. Will be easy for you to recollect quickly. I cap, j cap, k cap. Okay. You can think about one more time I cap, j cap and k cap students. Okay. I cap, j cap, k cap. Okay students. I cap. What is the dot product? It is 1. Okay. J cap. What is the dot product? It is 1. K cap. What is the dot product? It is 1. What about other values in this table, students? Other values has to be 0. I cap dot product with j cap will give you 0. I cap, k cap dot product 0. J cap, I cap dot product 0. J cap, k cap dot product 0. K cap, I cap dot product 0. K cap, j cap dot product 0. So जैसा मैंने कहा था, रिकलेक्ट करना आपके लिए इजी होगा. This is like an identity format, students. 1 0 0 0 1 0 0 0 1. Very important, student. This is. Okay. I think we are on characteristic number 6. Consider P vector, students, is equals to Px I cap, okay, plus Py j cap plus Pz k cap, and another vector Q vector is equals to Qx I cap plus Qy j cap plus Qz k cap. दो वेक्टर्स हमने कंसीडर किए, P वेक्टर एंड Q वेक्टर. हमने उनके तीनों रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के फॉर्म में उनको लिख दिया. ओके. हमें फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स P वेक्टर dot Q vector. Very important step. We have to find out dot product of P vector with Q vector. So P vector में first of all as it is लिखना चाहूंगा students. I get Px I cap plus Py j cap plus Pz k cap. Dot product, right? Dot product, students. With Q vector, which is taken as Qx I cap plus of Qy j cap plus Qz k cap. So हमने डॉट प्रोडक्ट लिखा हुआ है बीच में. दिस इज P वेक्टर, दैट इज Q वेक्टर. रिसेंटली हमने कैरेक्टरिस्टिक में समझा स्टूडेंट दैट डॉट प्रोडक्ट इज
ओबेइंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, तो हमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को यहां भी फॉलो करना रहेगा। तो आप इस तरीके से लिख सकते हो स्टूडेंट्स, पी वेक्टर डॉट क्यू वेक्टर इज इक्वल्स टू पी एक्स आई कैप डॉट एज इट इज, क्यू वेक्टर लिखना पड़ेगा स्टूडेंट्स आपको, क्यू एक्स आई कैप प्लस क्यू वाई जे कैप प्लस क्यू जेड के कैप। ठीक है ना स्टूडेंट्स? ओके, सो ये हो गया पी एक्स आई कैप यानी पी वेक्टर का फर्स्ट टर्म, प्लस नाउ यू कैन थिंक अबाउट पी वेक्टर का सेकेंड टर्म यानी जे कैप वाला टर्म। सो प्लस एज इट इज वी गेट पी वाई जे कैप डॉट प्रोडक्ट किसके साथ? क्यू वेक्टर के साथ। सो वी गेट क्यू एक्स आई कैप प्लस क्यू वाई जे कैप प्लस क्यू जेड के कैप। ध्यान से ऑब्जर्व करिए स्टूडेंट्स, व्हाट एम आई डूइंग? ओके, दो टर्म हो गए बेटा। वन मोर वी हैव विथ पी जेड के कैप प्लस एज इट इज, व्हाट इज दैट थर्ड टर्म? पी जेड के कैप डॉट प्रोडक्ट निकालना है किसके साथ? विथ क्यू वेक्टर, राइट? दैट इज क्यू एक्स आई कैप प्लस क्यू वाई जे कैप प्लस क्यू जेड के कैप। ओके, सो ऑब्जर्व इट प्रॉपरली स्टूडेंट, दिस इज पी एक्स इंटू क्यू एक्स। नाउ आई कैप रिसेंटली हमने पढ़ा बच्चों, आई कैप व्हाट इज द डॉट प्रोडक्ट? इट इज 1। ओके, सेकेंड देखते हैं ना स्टूडेंट्स, इट इज पी एक्स इंटू क्यू वाई। आगे देखिए, आई कैप जे कैप डॉट प्रोडक्ट इट विल बी 0 प्लस, लुक फॉर दिस, पी एक्स क्यू जेड आई कैप के कैप डॉट प्रोडक्ट, व्हाट इज दैट? 0। इजी है ना भाई? प्लस पी वाई देखो स्टूडेंट्स, पी वाई इंटू क्यू एक्स, पी वाई इंटू, या फिर सिंपली मैं 0 लिख दू स्टूडेंट्स, राइट? पी वाई इंटू क्यू एक्स। आगे देखिए, जे कैप आई कैप, व्हाट इज द डॉट प्रोडक्ट? इट इज 0। सो लेट मी डायरेक्टली यूज 0 फॉर दैट। ओके, आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। क्या किया बेटा मैंने? जे कैप आई कैप डॉट प्रोडक्ट इज 0। नेक्स्ट टर्म स्टूडेंट्स, पी वाई इंटू क्यू वाई, जे कैप व्हाट इज द डॉट प्रोडक्ट? 1 प्लस पी वाई क्यू जेड, बट जे कैप के कैप व्हाट इज द डॉट प्रोडक्ट? इट इज 0। ओके, प्लस we have 3 more terms with us, pz qx. Okay, but look for this, k cap I cap, what is the dot product? It is 0. सेकेंड टर्म देखते हैं, प्लस करके लिख दूं मैं, pz qy k cap j cap dot product, what is that? 0. last term to go, pz multiply that by qz. आगे देखिए, k cap what is the dot product? it is 1. okay, so आप इसको एक प्रॉपर फॉर्मेट में लिख दीजिए स्टूडेंट्स। यू गेट px qx, ओके, एक टर्म यहां पे है, प्लस py qy इंटू 1 ही है, छोड़ दीजिए उसे, प्लस what you get here students, pz qz. So we can take p vector dot q vector, right? P vector dot q vector as simply px qx plus py qy plus pz qz. Px into qx plus py into qy plus pz into qz. समझेगा स्टूडेंट्स? ये p vector dot q vector is equals to px qx plus py qy plus pz qz.
This was our characteristic number 6. Let me give you two important notes. First note students, हमें दो वेक्टर दे दिए रिसेंटली, हमने जैसे कंसिडर किया था P वेक्टर Q वेक्टर. हमें पूछा व्हाट कैन बी द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स. मैंने आपको फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक में ये भी समझाया, स्पेशल केसेस वो तीन एंगल थीटा 0, थीटा 90, थीटा 180. बट अगर थीटा इन तीनों में से कुछ नहीं हुआ तो फिर थीटा कैसे कैलकुलेट करेंगे, मतलब P वेक्टर एंड Q वेक्टर के बीच एंगल कैसे फाइंड आउट करें. स्टूडेंट्स हम जानते हैं दैट P वेक्टर डॉट Q वेक्टर कैन बी टेकन एज P Q cos theta. Okay, so we can rearrange and we get cos theta. Cos theta को हम लिख सकते हैं स्टूडेंट्स P वेक्टर डॉट Q वेक्टर the whole upon magnitude of P into magnitude of Q. Okay, आपको थोड़ा और इसे स्टेप वाइज लिखना होगा. What you can do ना स्टूडेंट्स, आप वापस वो सेम दो वेक्टर अज्यूम कर सकते हो, P वेक्टर एंड Q वेक्टर. थोड़ा इसे मैं नीचे शिफ्ट करना चाहूंगा बेटा. P वेक्टर स्टूडेंट्स इज Px I cap plus Py j cap plus Pz k cap for P वेक्टर, राइट. एंड Q वेक्टर कैसे लिखेंगे स्टूडेंट्स, तीनों कंपोनेंट्स के फॉर्म में. Qx I cap plus Qy j cap plus Qz k cap. So how you find out P वेक्टर डॉट Q वेक्टर, हमने पूरा सॉल्व किया रिसेंटली एंड हमने सीखा दैट P वेक्टर डॉट Q वेक्टर को हम लिख सकते हैं Px Qx प्लस Py Qy प्लस Pz Qz. Okay, the whole upon magnitude of P multiplied by magnitude of Q. How you find out magnitude of P vector students? It will be square root of Px square plus Py square plus Pz square. Okay. And how to find magnitude of Q vector? Magnitude of Q vector will be square root of Qx square plus Qy square प्लस ऑफ Qz स्क्वायर स्टूडेंट्स. ओके, तो मैंने आपको पूरा ये फॉर्मूला भी लिखवा दिया. दिस वाज माय नोट नंबर 1. फिनिश करिए इसे. सेकेंड नोट फॉर यू. Students, we are given three vectors, A vector, B vector and C vector. And ऐसा हमें information दिया गया है that A vector is a non-zero vector. Okay. And A vector dot B vector is equals to A vector dot C vector. ये दो कंडीशन हमें दिए हुए हैं. A वेक्टर का वैल्यू 0 नहीं है एंड A वेक्टर डॉट B वेक्टर इज इक्वल्स टू A वेक्टर डॉट C वेक्टर. नाउ इफ वी लुक एट दिस फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, लॉजिकली हम सोच सकते हैं सर अगर A वेक्टर में कैंसिल कर दूं तो मैं प्रूव कर दूंगा दैट B वेक्टर इक्वल्स टू C वेक्टर. बट लेट मी टेल यू, ऐसा जरूरी नहीं है. मतलब A वेक्टर डॉट B वेक्टर इज इक्वल्स टू A वेक्टर डॉट C वेक्टर. दिस इज गिवन टू अस. So it is not necessary that B vector and C vector are equal vectors. इसको मैं थोड़ा आपको सॉल्व करके समझाना चाहूंगा स्टूडेंट. दिस इज गिवन टू यू, राइट. इंस्टेड ऑफ दिस, क्या हम इसे ऐसे नहीं लिख सकते साइड ट्रांसफर करके
A vector dot B vector minus of A vector dot C vector equals to 0. आप क्या करिए स्टूडेंट्स, आप इन दोनों में से A वेक्टर को डॉट के साथ कॉमन ले लीजिए. Inside the bracket you will get B vector minus C vector is equals to 0. अब स्टूडेंट्स बीच में डॉट प्रोडक्ट है एंड जो आंसर है वो है 0. नाउ लेट मी टेल यू, A वेक्टर 0 नहीं है. दिस इज अ कंपल्सरी कंडीशन. सो ऐसा हो सकता है दैट, देखो बेटा A वेक्टर तो 0 नहीं है, सो ऐसा हो सकता है दैट B वेक्टर minus C vector is equals to 0. So can't I say students that B vector is equals to C vector? सर आप 2 मिनट पहले तो मना कर रहे थे that ऐसा जरूरी नहीं है. स्टूडेंट्स आपने सिर्फ डॉट प्रोडक्ट दोनों के बीच देखा, आपको ये लगा कि B वेक्टर माइनस C वेक्टर 0 होगा. ठीक है, तो आप ये समझ पाओगे that B वेक्टर इक्वल टू C वेक्टर. बट लेट मी टेल यू, हमने अब तक एक कंडीशन के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा है. मैंने आपको वो स्पेशल केस बताया था स्टूडेंट्स, फॉर परपेंडिकुलर वेक्टर्स डॉट प्रोडक्ट इज 0 एंड यहां दोनों वेक्टर्स का जो डॉट प्रोडक्ट है वो 0 है. मतलब ये कंडीशन तो है, ठीक है, बट इट इज नॉट नेसेसरी ना स्टूडेंट्स, क्योंकि सेकेंड कंडीशन भी हो सकता है. डॉट प्रोडक्ट 0 है मतलब दोनों वेक्टर्स कैसे होंगे, परपेंडिकुलर होंगे. मतलब एक और कंडीशन आ सकता है, that condition will be students A vector is perpendicular to second vector. कौन सा है students, B vector minus C vector. So if A vector is non-zero and it is given that A vector dot B vector is equals to A vector dot C vector, it is not necessary that B vector is equals to C vector, because दूसरा ये वाला कंडीशन भी तो ओबे हो सकता है स्टूडेंट्स. Now we can concentrate on vector product, which is also called as cross product. Let's say we consider P vector and Q vector, and we have to find out the cross product of these two vectors. That is, we have to find out P vector cross Q vector. So P vector cross Q vector can be taken as magnitude of P vector into magnitude of Q vector into sine of smaller angle between the two vectors, मतलब theta. Students, हमने few minutes ago पढ़ा that when you are finding cross product यानी vector product, जो आउटपुट में हमें क्वांटिटी मिलता है that will also be a vector quantity. सो ये तो स्टूडेंट सिर्फ मैग्नीट्यूड हो गया. अब डायरेक्शन के लिए मैं लिखने वाला हूं एन कैप. एन कैप इज अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ P वेक्टर एंड Q वेक्टर, दैट इज बोथ द वेक्टर्स. सो आप इस तरीके से कह सकते हो P वेक्टर क्रॉस Q वेक्टर इज इक्वल्स टू magnitude of P into magnitude of Q into sin theta. Theta is smaller angle between the two vectors, and n cap is basically going to give you direction, and n cap is a unit vector perpendicular to the plane containing the two vectors, that is हमारे केस में P vector and Q vector. I will do one thing students, I will consider P vector over here. Okay, this is Q vector and दोनों वेक्टर P वेक्टर एंड Q वेक्टर के बीच जो एंगल है स्टूडेंट्स वो है थीटा. एंड द रूल इज वी हैव टू फाइंड आउट P वेक्टर क्रॉस Q वेक्टर. यू कैन नॉट रिवर्स, इट इज P वेक्टर क्रॉस Q वेक्टर. सो यू आर गोइंग फ्रॉम
P to Q. So मैं डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फाइंड आउट करने के लिए राइट हैंड पाम रूल यूज करने वाला हूं. मैं जाने वाला हूं स्टूडेंट्स विथ माय पाम एक्सटेंडेड लाइक दिस फ्रॉम P to Q. Can I say students, if I go from P to Q, my thumb is pointing upward. So upward, yani in this direction, I get the direction of, tell me, resultant vector, R vector, and n cap for me is a unit vector. Yes. N cap is a unit vector perpendicular to the plane of both the vectors P vector and Q vector. So students, direction कैसे निकालना है ध्यान से ऑब्जर्व करिए. You are going from P to Q. Okay, एक एग्जाम्पल हम समझ सकते हैं स्टूडेंट्स. यहाँ पे we can consider these two markers. Okay, for your better visibility I take another color. Just a moment. Okay. We consider this example students. जो black वाला marker है that is P vector, जो red वाला marker है that is Q vector. Okay, it is like this. ये P है, ये Q है. So हमें palm को किस तरीके से ले जाना है students? It should be from P to Q. It should be from P to Q. Can I say when I am going from P vector to Q vector, my thumb is pointing this way. So this will give you the direction of resultant. And n cap तो यूनिट वेक्टर है, r वेक्टर के अलोंग ही होगा. ओके, सो वी हैव टू फॉलो राइट हैंड पाम रूल इन दिस वे. बेटा ध्यान से समझिए, अगर आप Q से P जाते मतलब रिवर्स, मैंने कहा Q से P मतलब इसका उल्टा, सो आपको मैग्नीट्यूड तो सेम मिलेगा इसका, लेकिन डायरेक्शन विल बी अपोजिट. सो अगर आप P to Q गए तो थंब का डायरेक्शन अपवर्ड होगा. But if you go in reverse way, that is from Q to P, your thumb will point downward. So students, आपको दोनों वेक्टर ऐसे मिल रहे हैं जिनका मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है. And let me tell you, अपोजिट डायरेक्शन वाले वेक्टर को हम इक्वल वेक्टर नहीं कहते हैं. So डायरेक्शन फाइंड आउट करते समय खास ख्याल रखना है, we have to go from first vector to second vector to get the direction of resultant vector R vector. स्टूडेंट्स, एक काम करते हैं, यहाँ पे हमने जो डॉट प्रोडक्ट में रूल फॉलो किया था वो यहां भी कर लेते हैं. P वेक्टर के मैग्नीट्यूड को हम कहते हैं P. Q वेक्टर के मैग्नीट्यूड को हम कहते हैं Q. डेफिनेटली साइन थीटा एज इट इज, n कैप एज इट इज. ओके स्टूडेंट्स, एंड लेफ्ट हैंड साइड में मैं लिखने वाला हूं P वेक्टर क्रॉस Q वेक्टर. So P vector cross Q vector is equals to P Q sin theta n cap. ये हो गया स्टूडेंट्स हमारे वेक्टर का, रिजल्टेंट वेक्टर का मुझे कहना चाहिए मैग्नीट्यूड, एंड ये हो गया स्टूडेंट्स डायरेक्शन. सो हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, द वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज अ वेक्टर whose magnitude is equal to the product of magnitudes of the two vectors and sine of the smaller angle between the two vectors. Students, smaller angle मतलब theta. You should not go with this 360 minus theta beta. It should be smaller angle, that is theta, right? And मैं आपको definition explain कर रहा था, और एक बार try करते हैं स्टूडेंट्स. The vector product or cross product of two non-zero vectors, in our case those two are P vector and Q vector, right? The vector product, also called as cross product, is defined as a vector, right, whose magnitude is equal to the product of magnitudes of the two vectors and sine of the smaller angle between the two vectors, and direction is given by, आप कह सकते हो, right hand screw rule, that is n cap. तो ये हो गया स्टूडेंट्स हमारे रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, एंड n cap से स्टूडेंट्स हम लोग रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन फाइंड आउट कर पाएंगे. समझेगा ये
स्टूडेंट्स मुझे आपको वेक्टर प्रोडक्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स बताने हैं एक एक करके. ओके first characteristic, quite straightforward for you right now. P vector क्रॉस Q वेक्टर. अभी हमने इसका फॉर्मूला समझा स्टूडेंट्स, डिफाइन किया, डायग्राम भी हमने समझा, डायरेक्शन कैसे निकालेंगे हमने देखा. नाउ स्टूडेंट्स इफ यू हैव टू फाइंड आउट ओनली द मैग्नीट्यूड, सो किस तरीके से आप कर सकते हो, मैग्नीट्यूड ऑफ P into magnitude of Q into sin theta, that's it, and theta should be smaller angle between the two vectors P vector and Q vector. Okay, second students, vector product does not obey commutative law. Vector product does not obey, right? Vector product does not obey commutative law. Students, जो P वेक्टर क्रॉस Q वेक्टर होगा, राइट, एंड Q वेक्टर क्रॉस P वेक्टर होगा, इन दोनों का मैग्नीट्यूड तो इक्वल होगा, बट लेट मी टेल यू their directions will be opposite. So P vector cross Q vector and Q vector cross P vector are equal in their magnitudes, but their directions will be opposite. एक simple सा example ले लेते students. Let's say this is P vector for you. Clearly आपको समझ जाएगा इससे. Okay. This is Q vector. And you are finding P vector cross Q vector. So you have to go from P to Q, right? With your right hand this way, you have to go from P to Q. Can I say students, ये जो आपको रिजल्टेंट मिलेगा वो इस डायरेक्शन में होगा. ओके, तो ये रिजल्टेंट हमें R वेक्टर इस डायरेक्शन में मिल गया. Now you think opposite of this. This is P vector students. Okay, same हम P vector Q vector का पोजीशन रख लेते हैं. And this time you are finding Q vector cross P vector. So you have to go from Q to P. So tell me रिजल्टेंट इस तरफ आएगा कि नहीं स्टूडेंट्स? तो R वेक्टर का डायरेक्शन इस तरफ होगा, मतलब जो लास्ट टाइम मिला था उससे एग्जैक्टली अपोजिट. स्टूडेंट्स आप ध्यान से ऑब्जर्व करिए, इसीलिए मैं इसे अभी R1 वेक्टर एंड इसे R2 वेक्टर कहूंगा. इन दोनों वेक्टर्स का नो डाउट मैग्नीट्यूड सेम होगा, but directions will be opposite. Students आप ऐसा भी कह सकते हो that R1 vector and R2 vector are in opposite directions. मतलब P vector cross Q vector को, I repeat, P vector cross Q vector को मैं Q vector cross P vector नहीं लिख सकता हूं बच्चों. P वेक्टर क्रॉस Q वेक्टर को मैं Q वेक्टर क्रॉस P वेक्टर नहीं लिख सकता हूं, क्योंकि उनका सिर्फ मैग्नीट्यूड्स इक्वल है, डायरेक्शन थोड़ी सेम है. इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स के जो वेक्टर प्रोडक्ट है वो कम्यूटेटिव लॉ को ओबे नहीं करता है. थर्ड प्रॉपर्टी स्टूडेंट्स, आप थर्ड कैरेक्टरिस्टिक कह सकते हो अबाउट वेक्टर प्रोडक्ट, दैट वेक्टर प्रोडक्ट ओबेज distributive law. It obeys distributive law. That means P vector क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है मुझे Q वेक्टर प्लस R वेक्टर के साथ. ओके, इट इज P वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट विद Q वेक्टर प्लस R वेक्टर. इसे मैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करके लिख सकता हूं P वेक्टर क्रॉस Q वेक्टर. ओके, फर्स्ट टर्म आ गया.
प्लस एज इट इज आ जाएगा। सेकेंड टर्म स्टूडेंट्स, पी वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। वेक्टर प्रोडक्ट कम्यूटेटिव लॉ को ओबे नहीं करता है, वेक्टर प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को ओबे करता है। Fourth point in characteristics, we have to think about special cases students. Special cases, special angles हम consider कर सकते हैं for parallel vectors, anti-parallel vectors, perpendicular vectors. First of all, I will substitute theta is equals to 0 degree. Means I am thinking about parallel vectors. Okay. Then I substitute theta as 90 degree. I am thinking about perpendicular vectors. Third, theta is equals to 180 degree. I am thinking about the two vectors which are anti-parallel. तीनों स्पेशल केस हो जाएंगे हमारे. Okay. स्टूडेंट्स, जो P वेक्टर क्रॉस Q वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है, P वेक्टर क्रॉस Q वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है उसे हम कहते हैं PQ sin थीटा. दैट्स इट. P वेक्टर क्रॉस Q वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज PQ sin थीटा. ओके, चलिए सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं स्टूडेंट्स. स्टूडेंट्स, यहां पे मैं स्पेशल केस में थीटा को सब्स्टिट्यूट करने वाला हूं 0 डिग्री. So students, I get P vector cross Q vector का magnitude is equals to PQ into sin 0. Sin 0 is 0. So you get 0. Okay. So for parallel vectors, cross product will be 0. For parallel vectors, cross product will be 0. थीटा को 90 सब्स्टिट्यूट करते हैं, sin 90 1 हो जाएगा स्टूडेंट्स. We can say P वेक्टर क्रॉस Q वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा PQ. sin 90 का वैल्यू 1 होता है स्टूडेंट, सो यू गेट PQ. दैट्स इट. थीटा 180. व्हाट अबाउट sin 180? इट इज अगेन 0, सो यू गेट P वेक्टर क्रॉस Q वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है इट इज इक्वल्स टू 0. फॉर पैरेलल वेक्टर्स एंड एज वेल एज फॉर एंटी पैरेलल वेक्टर्स हम कह सकते हैं क्रॉस प्रोडक्ट इज 0. क्रॉस प्रोडक्ट इज 0. एंड फॉर परपेंडिकुलर वेक्टर्स हम कह सकते हैं क्रॉस प्रोडक्ट का जो मैग्नीट्यूड होगा इट इज सिंपली द मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ द टू वेक्टर्स. दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ P वेक्टर क्रॉस Q वेक्टर इज इक्वल्स टू PQ. दैट्स इट. ओके, सो these are certain special cases जो हमें समझने हैं स्टूडेंट्स. नाउ वी कैन ऑल्सो थिंक अबाउट पॉइंट नंबर 5 इन कैरेक्टरिस्टिक. इमीडिएटली आफ्टर दैट फोर्थ वन. हमने स्पेशल केस समझा स्टूडेंट, 0 हमें समझा, 90 के लिए समझा. नाउ वी विल थिंक अबाउट यूनिट वेक्टर्स. व्हाट अबाउट i कैप क्रॉस i कैप? व्हाट अबाउट j कैप क्रॉस j कैप? What about k cap cross k cap? स्टूडेंट्स देखिए, क्रॉस 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 प्रोडक्ट हमें फाइंड आउट करना है. i cap is parallel to i cap and for parallel vectors हम जानते हैं बेटा कि जो क्रॉस प्रोडक्ट आने वाला है वो होगा 0. So i cap cross i cap is 0. j cap cross product 0. k cap cross product is 0.
Okay. Now we have to find out I cap cross j cap. This is for perpendicular vectors, right? Then j cap cross k cap. Then k cap cross I cap. ये हमें फाइंड आउट करना रहेगा स्टूडेंट्स. सो वी हैव टू फॉलो दैट साइक्लिक रूल. एक काम कर लेते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम आई कैप जे कैप के कैप ड्रॉ करके समझते हैं. आई कैप इज अ यूनिट वेक्टर along x axis. j cap is a unit vector along y axis, while k cap is a unit vector along z axis. So students, in case I am traveling from I to j, right? I am traveling from I to j, I will get k cap. So if it is I cap cross j cap, I will get only k cap as the direction. And students, what about their magnitudes? What is the magnitude of I cap? Yes, it is 1. Unit vector है भाई, खुद का magnitude 1 है. I cap का magnitude 1, J cap का magnitude 1. So 1 into 1 तो 1 ही होगा. So आपको मिलेगा 1 K cap, that is simply K cap. So आप K cap बोलेंगे तो चलेगा. What about J cap cross K cap? J cap cross k cap. So I am traveling from J to K. If I travel from J to K, I get I cap, right? So this has to be students I cap. J cap का magnitude 1, K cap का magnitude 1. 1 into 1, 1. 1 into I cap is simply I cap. Third, K cap cross I cap. You are going from k cap to I cap. So if you are going from k cap to I cap, you will get j cap, right? So you will get j cap. वो जो स्टेप था स्टूडेंट्स 1 into 1 into j cap, वो आप समझेंगे, right? So 1 into 1 into j cap will simply give you j cap. I cap cross j cap gives you k cap. J cap cross k cap gives you I cap. K cap cross I cap gives you j cap. Now we can think about the reverse of it. हमने सीखा that I cap cross j cap हमें k cap देगा. तो reverse मतलब I will be traveling from j cap to I cap, right? So I will be writing j cap cross I cap. Students, हम जानते हैं जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो कम्यूटेटिव लॉ को ओबे नहीं करता है, तो हमें डेफिनेटली के कैप मिलने वाला नहीं है. हमें मैग्नीट्यूड तो सेम मिलता है बट डायरेक्शन विल बी अपोजिट. सो हियर इट विल बी माइनस के कैप. ओके, सेकेंड एंड थर्ड आप ट्राई करिए स्टूडेंट्स. जे कैप क्रॉस के कैप इज आई कैप. सो व्हाट अबाउट के कैप क्रॉस जे कैप? Magnitude same, direction opposite, so you will be getting minus of I cap. Okay, this one students. If I am going from k cap to I cap, that is I am finding k cap cross I cap, I get j cap. So this time I will be traveling opposite, that is I cap cross k cap. I will be getting minus of j cap. ध्यान से इसे नोट कर ले स्टूडेंट्स. This three and that 3, all these things. Next point of characteristic, I think we are on point number 6.
आई एम कंसिडरिंग पी वेक्टर स्टूडेंट्स, पी वेक्टर इज इक्वल्स टू, उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के फॉर्म में लिखने जा रहा हूं मैं, पी वेक्टर इज इक्वल्स टू पी एक्स आई कैप प्लस पी वाई जे कैप प्लस पी जेड के कैप. Okay, and second vector is q vector. I am considering that I get qx I cap plus qy j cap plus qz k cap. And हमें find out करना है students p vector cross q vector. We are interested in finding out p vector cross q vector. Okay, so p vector is px I cap plus py j cap plus pz k cap. Okay, cross product with q vector. Q vector is qx I cap plus qy j cap प्लस qz k cap. ओके स्टूडेंट्स, क्रॉस प्रोडक्ट है एंड ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को ओबे करता है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसमें डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं. फर्स्ट टर्म विल बी स्टूडेंट्स px i cap. हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालने वाले हैं with this entire term, so that has to be as it is, q vector as it is, qx I cap plus qy j cap plus qz k cap. Okay, second term plus py j cap cross product with second term as it is, qx I cap plus qy j cap plus qz k cap. थर्ड टर्म स्टूडेंट्स प्लस करके लिख देता हूं मैं, pz k cap क्रॉस प्रोडक्ट विथ दैट टर्म qx I cap प्लस qy j cap प्लस qz k cap. इतना करिए स्टूडेंट्स, यू शुड ट्राई टू सॉल्व दिस. यहां सॉल्व करूंगा स्टूडेंट्स मैं इसे, लेंदी टर्म्स होने वाले हैं. ओके, इज इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड में क्या है स्टूडेंट्स हमारे पास, p वेक्टर क्रॉस q वेक्टर. लेफ्ट हैंड साइड में p वेक्टर क्रॉस q वेक्टर. ओके, राइट हैंड साइड में आई विल बी गेटिंग टोटल 9 टर्म्स, 3 3 3, टोटल 9 टर्म्स आई विल बी गेटिंग. फर्स्ट टर्म आने वाला है स्टूडेंट्स px इंटू qx. दैट इज ओके, वो तो हो जाएगा मैग्नीट्यूड, बट डायरेक्शन देखिए, i कैप क्रॉस i कैप. व्हाट इज i कैप क्रॉस i कैप? इट इज 0 प्लस सेकेंड टर्म स्टूडेंट्स ये वाला qy वाला, इट विल बी px qy, px qy i कैप j कैप क्रॉस प्रोडक्ट, राइट, i कैप क्रॉस j कैप. ओके, प्लस थर्ड टर्म स्टूडेंट्स px qz, px qz i कैप क्रॉस k कैप स्टूडेंट्स. ओके, 3 टर्म आ गए तुम्हारे पास. प्लस नेक्स्ट 3 टर्म्स के बारे में हम सोच सकते हैं, py qx
पी वाई क्यू एक्स, क्रॉस प्रोडक्ट है स्टूडेंट्स, मैग्नीट्यूड तो आ गया तुम्हारे पास, पी वाई क्यू एक्स. व्हाट अबाउट द डायरेक्शन? इट विल बी जे कैप क्रॉस आई कैप. ओके, प्लस नेक्स्ट टर्म, यू नो द आंसर है बेटा, ट्राई करो. पी वाई क्यू वाई मैग्नीट्यूड, व्हाट अबाउट द डायरेक्शन? जे कैप क्रॉस प्रोडक्ट, जे कैप क्रॉस प्रोडक्ट इज 0. ओके, प्लस ये वाला टर्म स्टूडेंट्स क्यू जेड वाला, यू गेट पी वाई इंटू क्यू जेड, ये हो गया मैग्नीट्यूड. अब डायरेक्शन की बारी, जे कैप के कैप, डायरेक्शन स्टूडेंट्स जे कैप क्रॉस के कैप. ओके, राइट. 3 more terms we have, ट्राई करते हैं आप. पी जेड क्यू एक्स, पी जेड क्यू एक्स, डायरेक्शन देखिए, के कैप क्रॉस आई कैप, के कैप क्रॉस आई कैप. ओके, सेकेंड टर्म इन दिस ब्रैकेट, पी जेड क्यू वाई, पी जेड क्यू वाई, डायरेक्शन के कैप जे कैप, क्रॉस प्रोडक्ट है बीच में, के कैप क्रॉस जे कैप. लास्ट वाला यू कैन ट्राई ना, पी जेड क्यू जेड, बट व्हाट अबाउट द डायरेक्शन? के कैप क्रॉस के कैप, के कैप क्रॉस के कैप इज डेफिनेटली 0. So out of the total 9 term students, ये 3 term तो 0 हो गए. You have to solve only 6 terms now. Okay? Right? हाँ. So अभी एक काम कर सकते हैं स्टूडेंट्स, ये स्टेप आपने लिख लिया होगा, ये मैं अज्यूम कर रहा हूं, तो इतना मैं इरेज कर देता हूं. ओके, आई नीड मोर स्पेस इन दिस. ओके, हाँ, इसकी मुझे जरूरत है. ओके स्टूडेंट्स, वी कैन सॉल्व इट फर्दर. सो पी वेक्टर क्रॉस क्यू वेक्टर लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज इक्वल्स टू, स्टूडेंट्स मैं लिख रहा हूं, पी एक्स इंटू क्यू वाई. लुक एट दिस स्टूडेंट्स, आई कैप क्रॉस जे कैप, यू कैन टेक द हिंट, आई कैप क्रॉस जे कैप इज के कैप, तो यहां तुम लिख सकते हो के कैप. ओके, प्लस पी एक्स इंटू क्यू जेड, आई कैप क्रॉस के कैप, आई कैप क्रॉस के कैप, इज इट जे और माइनस जे? टेल मी स्टूडेंट्स. If it is k cross I, it is j, but this time it is I cross j, so I cross k, so it will be minus j cap. Alright, ठीक है ना? प्लस यहां देखो, पी वाई क्यू एक्स, it is j cap cross I cap, जे कैप क्रॉस आई कैप. अच्छा, जो लोग शायद ये कॉन्सेप्ट को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, उनके लिए मैं एक काम करता हूं, थोड़ा इसको स्टेप वाइज सॉल्व करके और एक बार दिखा देता हूं. देखो बेटा, अगर ऐसा हुआ, मैं यहां लिख देता हूं आपके लिए, आई कैप क्रॉस जे कैप, आई टू जे, यू कैन से इट इज के कैप. ओके, सेकेंड क्या हो सकता है स्टूडेंट्स? जे कैप cross k cap, that will be I cap. You are going from j to k, that will be I cap. Third combination students, k cap cross I cap, you will get j cap. Okay, और एक बार, ठीक है, 0 लिमिट p x q y, बेटा ये यूज करना है बेटा तुमको. ओके, p x q y, I cap cross j cap, I cap cross j cap is k cap. Okay, then
पी एक्स क्यू जेड एज इट इज बेटा आई कैप क्रॉस के कैप. ध्यान से देखिए, इफ इट इज के देन आई इट इज जे, बट दिस टाइम इट इज अपोजिट, राइट? इट इज आई क्रॉस के. सो इज इट जे और माइनस जे? इट इज माइनस जे. वही तो लिखा है मैंने. ओके, प्लस यहां देखते हैं स्टूडेंट्स, पी वाई इंटू क्यू एक्स, जे कैप क्रॉस आई. जे से आई बेटा, J से I. If it is I to J, it is K. So this time it will be minus of K cap, right? Plus zero वाला term you can leave ना. Plus students you get Py into QZ. Into you have this direction J cap cross K. So it is J to K. J to K. What you get? You get I cap. So we are done with two more terms. We have two more to go. This one students. Plus as it is लिख देता हूं मैं. PZ QX K cap cross I cap. K cap cross I cap. So it is K to I. If it is K to I, it will be J. So it will be J cap students. Okay. Plus PZ into Qy K cap cross J cap. If it is J to K, it is I, but this time it is K to J, opposite, right? So you will get I or minus I, you will get minus of I students. इतना कर लीजिए. So here the catch is, ये जो हमें 6 टर्म्स मिले स्टूडेंट्स 1 2 3 4 5 6, इसको हमें डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखना है. सो एक काम कर लेते हैं स्टूडेंट्स, आई कैप वाले टर्म्स पहले सिलेक्ट कर लेते हैं. आई कैप वाले टर्म्स. ओके, आई मे स्टार्ट फ्रॉम हियर, माइट बी बेटर फॉर यू. ओके, यहां से मैं स्टार्ट कर दूं बेटा. पी वेक्टर cross q vector is equals to, select the two terms with I. यहां पे I कैप है स्टूडेंट्स एंड यहां पे भी I कैप है. हाँ, वो नेगेटिव साइन हम देख लेंगे, बट दोनों I कैप वाले टर्म मुझे दिख रहे हैं. तो मैं लिखने वाला हूं स्टूडेंट्स पी वाई क्यू जेड I कैप माइनस पी जेड क्यू वाई आई कैप. ओके, ये दोनों आई कैप वाले टर्म्स हो गए. नाउ आई विल सिलेक्ट फॉर टू टर्म्स विथ जे कैप. इसे देखिए स्टूडेंट्स, 1 यहां पे मैं राइट टिक कर दूं ताकि आप समझ पाए. जे कैप वाला टर्म है एंड ये भी जे कैप वाला टर्म है स्टूडेंट्स. साथ में लिखेंगे, फिर हम उसे कॉमन ले सकते हैं. सो वी गेट प्लस ऑफ पी जेड क्यू एक्स जे कैप, वो माइनस है पी एक्स क्यू जेड जे कैप. जे कैप वाले दोनों टर्म्स आ गए. नाउ जिसमें हमने कोई टिक वगैरह नहीं किया, लूप ड्रॉ नहीं किया, दैट इज ऑब्वियसली टर्म विद के कैप. ये दोनों टर्म्स बेटा के कैप वाले हैं. सो हम लिख सकते हैं पी एक्स क्यू वाई के कैप माइनस ऑफ पी वाई क्यू एक्स के कैप. ओके, सो यहां स्टूडेंट्स हम लिख सकते हैं पी वाई क्यू जेड माइनस पी जेड क्यू वाई
I have taken I cap common. Now these are the two terms with j cap. You can take it common. J cap you can take common. You get pzqx minus pxqz the whole into j cap. k cap इन दोनों टर्म्स में से कॉमन लिया जा सकता है. So we get plus of pxqy minus pyqx. We have taken k cap common students. So ये हमें p वेक्टर क्रॉस q वेक्टर का फॉर्मूला मिल गया स्टूडेंट्स. pyqz minus pzqy the whole into I cap plus pzqx minus pxqz the whole into j cap plus pxqy minus pyqx the whole into k cap. अब मैं कह रहा था इसी को स्टूडेंट्स हमें डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिखना है. ओके तो चलिए मैं फर्स्ट रो डेडिकेट कर दूं टू ऑल द थ्री यूनिट वेक्टर्स आई कैप जे कैप के कैप. डिटरमिनेंट का फर्स्ट रो will be dedicated to the three unit vectors, namely I cap, j cap, k cap. Then second row is dedicated to p vector. कौन से components है? px, py, pz. Third row is dedicated to second vector. In our case it is q vector, that is qx, qy and qz. So students p vector cross q vector find out करने का मतलब होगा ये डिटरमिनेंट को सॉल्व करना. First row is dedicated to the three unit vectors I cap, j cap, k cap, right? Second row of this determinant is dedicated to first vector. In our case it is p vector. Third row is dedicated to second vector. In our case it is q vector. Important formula. Let me give you two important notes. First note is related to finding out area of parallelogram using vector product, that is cross product. For that, I have to consider a parallelogram in which the two vectors p vector and q vector, right, are given by the two adjacent sides of a parallelogram. So first p vector ये है, p vector reference के लिए आप इसे o कह सकते हैं. So p vector and this is q vector. So these are the two vectors which are actually forming two adjacent sides of a parallelogram. And angle theta आप कहां से कहां जाने वाले हो? p vector cross q vector, right? So angle theta यहां मुझे consider करना है. So my first responsibility here is
to complete a parallelogram. Okay, opposite sides of a parallelogram are equal and parallel. मैंने shift कर दिया, parallel draw कर दिया. Okay, that should be accurate. This is q vector, so now you can draw a side which is parallel to q vector. So ये हमने first of all एक parallelogram complete कर लिया students. अब ये parallelogram का हमें area calculate करना है. So what we can do ना students, we can draw a perpendicular here. Okay, we can draw a perpendicular. ये काम कर सकते हैं, थोड़ा मैं एंगल शिफ्ट कर लेता हूं फॉर बेटर विजिबिलिटी. ओके, ये परपेंडिकुलर यही रहने देते हैं. ओके, यहाँ पे एंगल बेटा 90. सो दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज बेसिकली हाइट h. ओके, एंड एंगल थीटा, दिस एंगल थीटा बिटवीन p वेक्टर एंड q वेक्टर बेटा मैं यहाँ डिनोट कर रहा हूं फॉर योर बेटर विजिबिलिटी. ओके, अब स्टूडेंट्स मुझे कैलकुलेट करना है एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम. एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम is given by base into height. ओके, तो मैं लिख दूं बच्चों बेस into height. आपके मेंसुरेशन से ही मैंने ये फॉर्मूला लिया हुआ है, बेस into height. बेटा जो बेस है वो है बेसिकली p वेक्टर. व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ p वेक्टर? सिंपली p, राइट? एंड व्हाट इज द हाइट? हाइट इज h. नाउ स्टूडेंट्स, इन दिस राइट एंगल ट्रायंगल, आप इसको देखिएगा 1 2 3. कैन आई से 1 2 3? कैन आई से दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल वेयर दिस एंगल इज थीटा. जो थीटा के पास वाला साइड होता है वो हमेशा कॉस थीटा वाला होता है, एंड जो अपोजिट यानी सामने वाला होता है वो साइन थीटा में होता है, राइट? सो एच को मैं लिख सकता हूं स्टूडेंट्स हाइपोटेन्यूस इनटू साइन थीटा. एच को हम क्या लिख सकते हैं? हाइपोटेन्यूस इनटू साइन थीटा. एंड हियर द हाइपोटेन्यूस इज नथिंग बट क्यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड, दैट इज क्यू. सो एच इज इक्वल्स टू height is equals to q into sin theta. Area of parallelogram is given by base into height. base का magnitude p है, into height जो है students h, उसे हम लिख रहे हैं q times of sin theta. q times of sin theta. So what we got? आप ही देखो भाई, p into q into sin theta. This is nothing else but p vector क्रॉस q वेक्टर का मैग्नीट्यूड. सो बाय फाइंडिंग द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ p वेक्टर एंड q वेक्टर का मैग्नीट्यूड वी कैन फाइंड आउट एरिया ऑफ गिवन पैरेललोग्राम इन विच p वेक्टर एंड q वेक्टर आर द टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ आवर पैरेललोग्राम. सेकेंड नोट, मैं इसी डायग्राम में सोच सकता हूं स्टूडेंट्स. कैन आई से this parallelogram basically consists of two equal area वाले triangles. This parallelogram consists of two equal area वाले triangles. So students, मैं ऐसा कह सकता हूं area of triangle number 1 plus area of triangle number 2. तो आप ऐसा कर सकते हैं स्टूडेंट्स, area of triangle plus एरिया ऑफ ट्रायंगल दूसरा ट्रायंगल. और बच्चा दोनों का एंगल, मुझे कहना चाहिए दोनों ट्रायंगल का जो एरिया होगा वो सेम ही होगा ना. सो एरिया ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ सेकंड ट्रायंगल विल गिव यू एरिया ऑफ दिस पैरेललोग्राम. ओके, एरिया ऑफ दिस पैरेललोग्राम. एंड स्टूडेंट्स, एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल विल गिव यू कंप्लीट एरिया ऑफ पैरेललोग्राम. एंड हम जानते हैं एक पैरेललोग्राम में जो दो ट्रायंगल होते हैं वो दोनों इक्वल होते हैं. सो ये दोनों एरियाज इक्वल है. दैट मीन्स हम कह सकते हैं स्टूडेंट्स एरिया ऑफ वन पर्टिकुलर ट्रायंगल, राइट? ये दोनों का एरिया मिला के एरिया ऑफ पैरेललोग्राम मिल रहा है. तो हम कह सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल कैन बी गिवन बाय हाफ ऑफ area of our parallelogram.
सो स्टूडेंट्स आप ऐसा भी कह सकते हो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, जो कैसे दिया जाता है स्टूडेंट्स, इट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ P वेक्टर क्रॉस Q वेक्टर। ये एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए दोनों नोट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ P वेक्टर क्रॉस Q वेक्टर and area of triangle is equals to half of magnitude of P vector cross Q vector।